Hello students, in today's lecture number 4 on physical world, we shall discuss the other two fundamental forces. In lecture number 3, we have already discussed the first two fundamental forces, number 1 gravitational force and number 2 electromagnetic force. Gravitational force was the force of mutual attraction which was discovered by Sir Isaac Newton. It acts between any two massive objects. It is a universal force. The gravitational force is known as universal force because it remains same everywhere in the universe. Every object in this universe experiences this gravitational force due to every other objects in the universe. This gravitational force plays an important role or key role in the large scale phenomena of the universe, that is macroscopic study, such as formation and evolution of stars, galaxies and galactic clusters, day and night formation, change in season, tides, formation of tides, revolution of planets around sun, each and everything. These phenomena are are explained by the gravitational force. The equilibrium system that you see in this universe, it is because of gravitational force. All planets around sun are revolving in their own orbits in a disciplined manner. It is also because of gravitational force. So the gravitational force which acts between any two massive object is directly proportional to the multiplication of the masses m1 m2 and inversely proportional to the square of distance between them. So we write F is equal to G m1 m2 upon r square, where G is a constant of proportionality known as gravitational constant or universal constant. G numerical value of G is 6.67 into 10 raised to the power minus 11 Newton meter square per kilogram square. So capital G, the unit of capital G gravitational constant, may be calculated like this. This G is a universal constant because its value remains same everywhere in the universe. Then we had a discussion on electromagnetic force. It is the force between charged particles when charged particles are at rest. This force was given by Coulomb, therefore it is also known as Coulomb force of attraction and repulsion. Electromagnetic force or Coulomb force may be of attractive nature as well as repulsive nature. It is also known as electrostatic force of attraction or repulsion. If the two given charges are like charges, then this force will be of repulsive nature, and if the two given charges are unlike charges or different charges, then this force will be of attractive nature. Here we have assumed two charges q1 q2 placed at distance small r in vacuum. So the force between these two charges is directly proportional to the multiplication of charges q1 and q2 and inversely proportional to the square of distance between them. So we write it like this: F is equal to k q1 q2 upon r square, where k is a constant of proportionality known as electrostatic or Coulomb constant, right? Then after this we discussed k, the electrostatic constant or Coulomb constant, is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0, where epsilon 0 is permittivity and its numerical value is 8.85 into 10 raised to the power minus 12 per Newton per meter square Coulomb square, and this epsilon naught epsilon 0 ये कहलाता है epsilon naught, and the value of k is 9 into 10 raised to the power 9 Newton meter square per Coulomb square. Unit of k can be calculated using this relation: k is equal to Newton meter square per Coulomb square. Electrostatic force or electromagnetic force or Coulomb force, you see, it is 10 raised to the power 36 times stronger than the gravitational force. Electrostatic force or electromagnetic force is a stronger force as compared to gravitational force.
ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्गर होता है, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वी कैन से कूलम फोर्स इज 10 raised to the power 36 times approximately stronger than the gravitational force. ग्रेविटेशनल फोर्स से इतना स्ट्रॉन्गर होता है कौन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ध्यान रखिएगा. नो डाउट ग्रेविटेशनल फोर्स is weak in nature, electromagnetic force is strong in nature, but both the forces, that is gravitational and electromagnetic forces, are of large range forces. These two forces are no doubt large range forces, but they have different strength. Gravitational force is a weak force and this electromagnetic force is a strong force. Today we discuss the third fundamental force present in nature, and the third fundamental force that we shall discuss is what? Strong nuclear force. Strong nuclear force. पहले लिख लेते हैं ये क्या होता है. It acts among nucleons, that is न्यूट्रॉन, अभी मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, एंड प्रोटॉन्स. न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स. इट एक्ट्स अमॉन्ग न्यूक्लियॉन्स, नंबर 1. नंबर 2, इट वाइंड्स, बांधता है, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन ए न्यूक्लियस. ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को न्यूक्लियस में बांधे रखता है या बांधता है. इट इज क्लियर दैट विदाउट सम अट्रैक्टिव फोर्स इन न्यूक्लियस, यहाँ लिख सकते हैं, इट इज वेरी मच clear that without some attractive force, a nucleus will be अनस्टेबल. कैसा हो जाएगा न्यूक्लियस? अनस्टेबल हो जाएगा. विल बी अनस्टेबल ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक repulsion between its protons. दिस फोर्स, मैं अभी आपको सारी लाइंस के बारे में क्लियर करूंगा, पहले लिख लेते हैं. दिस फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल फोर्सेज. जितने भी फंडामेंटल फोर्सेज हैं उन सब में ये स्ट्रॉन्ग होता है. दिस फोर्स इज approximately 100 times greater, approximately 100 times greater than the electromagnetic force. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की तुलना में लगभग 100 गुना ज़्यादा होता है. दिस फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट. ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, चार्ज पर निर्भर नहीं करता. दिस फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट
and acts equally between a proton and a न्यूट्रॉन। एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच ये इक्वली लगता है, सॉरी प्रोटॉन एंड प्रोटॉन एंड ए प्रोटॉन, या फिर ए न्यूट्रॉन एंड ए न्यूट्रॉन, और या फिर एंड ए प्रोटॉन एंड ए प्रोटॉन। देखिए, दिस फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट एंड एक्ट्स इक्वली बिटवीन ए प्रोटॉन एंड ए प्रोटॉन, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच, ए न्यूट्रॉन एंड ए न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच, एंड ए प्रोटॉन एंड ए न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच। ठीक है, ये इक्वली लगता है। वॉट एवर इज द चार्ज, चार्ज से इसका कोई मतलब नहीं है, ये चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स है, इसलिए प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच जो न्यूक्लियर फोर्स लगता है वो सेम होता है। इट्स रेंज, न्यूक्लियर फोर्स की जो रेंज है, इट्स रेंज इज एक्सट्रीमली स्मॉल, इट्स रेंज इज एक्सट्रीमली स्मॉल ऑफ अबाउट, कितनी होती है, ऑफ अबाउट न्यूक्लियस या न्यूक्लियस लिखिए, न्यूक्लियस ऑफ अबाउट न्यूक्लियस डायमेंशंस। न्यूक्लियस डायमेंशन यानी रेडियाई या रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितनी होती है, अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻15 मीटर, जिसे हम 1 फर्मी या फिर 1 फेम्टोमीटर भी कहते हैं। ठीक है, 10⁻⁻15 मीटर को 1 फर्मी या 1 फेम्टोमीटर भी कहते हैं। ठीक है, ये रेंज है न्यूक्लियर फोर्स की। दिस फोर्स इट इज responsible, it means nuclear force, a strong nuclear force is responsible, it is responsible, किसके लिए responsible होता है, for the stability of nuclei, यानी न्यूक्लियस को न्यूक्लियाई भी कहते हैं। the electrons do not experience this force, इलेक्ट्रॉन्स में ये फोर्स नहीं लगता। फर्दर हम ये भी जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, आज की लेटेस्ट रिसर्च के अकॉर्डिंग प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर विल्ट आउट, किससे बने होते हैं, विल्ट आउट ऑफ स्टिल मोर एलिमेंट्री, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी किसी और से मिलकर के बने होते हैं, मोर एलिमेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंट्स, किससे मिलकर के बने होते हैं, मोर एलिमेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंट्स कॉल्ड, क्या कहा जाता है उनको, क्वार्क, क्या कहा जाता है, क्वार्क, क्वार्क से मिलकर के बने होते हैं कौन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये मैंने आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पूरी कहानी बताई। अब इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, ये है एटम, ये क्या है, एटम, कोई भी एटम हो सकता है।
एटम का साइज क्या होता है? अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻10 मीटर, इस साइज का होता है एटम, ठीक है। एटॉमिक साइज इतनी होती है। इसके अंदर सेंटर पर यहाँ होता है ये न्यूक्लियस। कौन होता है ये? न्यूक्लियस, सब जानते होंगे न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूक्लियस में कौन होते हैं? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ कंटिन्यूअसली चक्कर लगाते रहते हैं। अब ये जो न्यूट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियस में रहते हैं, इसलिए इनका नाम क्या होता है? न्यूक्लियॉन्स। क्या कहते हैं इसको? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, क्योंकि ये जो न्यूट्रॉन्स हैं ये कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ये न्यूट्रॉन्स कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन, इसलिए इनको न्यूक्लियॉन कहते हैं। जैसे कि आईआईटी में पढ़ने वाला आईआईटीएन, नवोदय में आप पढ़ते हो तो आप नवोदयन कहलाते हैं, केबी में पढ़ते हो तो केबीएन कहलाते हैं। सिमिलरली न्यूक्लियस के अंदर रहने वाला क्या कहलाता है? न्यूक्लियॉन। जैसे इंडिया में रहने वाला इंडियन, अमेरिका में रहने वाला अमेरिकन। सिमिलरली न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन है? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है, और ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन किस नाम से जाने जाते हैं? न्यूक्लियॉन्स के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली जो न्यूक्लियर फोर्स है इन न्यूक्लियॉन्स के बीच ही लगेगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच ही लगेगा, ठीक है। तो यही पहला लाइन लिखा हुआ है, इट एक्ट्स अमॉन्ग न्यूक्लियॉन्स, दैट इज न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच लगेगा, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच लगेगा, या प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लगेगा। और ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को, यही न्यूक्लियर फोर्स है जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को न्यूक्लियस के अंदर बांधे रखता है, इससे बाहर नहीं जाने देता। कौन? न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स है। चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। और अभी हमने देखा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से लगभग कितना टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से लगभग 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है। यदि ये न्यूक्लियर फोर्स नहीं होता तो ये न्यूक्लियस स्टेबल नहीं रहता, ये टूट जाता। लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्टेबल रहता है बिकॉज ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। आगे हम 12th क्लास में पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स में, बाइंडिंग एनर्जी से ये बंधे हुए रहते हैं न्यूक्लियॉन्स, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इस न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। ये जो न्यूक्लियर फोर्स है जो न्यूक्लियॉन्स के बीच लगता है, ये सभी फंडामेंटल फोर्सेज में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। ये फोर्स चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। कौन? न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल्स होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच लगने वाला न्यूक्लियर फोर्स, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लगने वाला न्यूक्लियर फोर्स, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच लगने वाला फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, सभी समान होते हैं क्योंकि ये चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। न्यूक्लियर फोर्स की रेंज क्या है? इसकी साइज, इसकी रेडियस, न्यूक्लियस की कितनी रेडियस होती है? 10⁻⁻15 मीटर, जिसको हम 1 फर्मी या 1 फेम्टोमीटर भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियर फोर्स है इस न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियर फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करते, ठीक है। अब जो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस के अंदर हैं, ये भी किन्हीं और एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलकर के बने हैं, और जिन एलिमेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर के ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन बने हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्वार्क कहते हैं। वैसे तो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि कितने क्वार्क और कितने क्वार्क क्या होते हैं, पहले ये देख लीजिए। क्वार्क में आता है, देखिए, टॉप, बॉटम, टॉप को टी से लिखते हैं, बॉटम को बी से, चार्म सी से, स्ट्रेंज एस से, ठीक है, अप यू से, और डाउन डी से। टॉप का चार्ज होता है +2/3e, बॉटम का होता है -1/3e, चार्म का होता है +2/3e, स्ट्रेंज का होता है -1/3e, अप का होता है +2/3e,
और डाउन का होता है -1/3e। ठीक है। अब टॉप का एंटी पार्टिकल यदि मैं लिखूं, एंटी पार्टिकल टॉप का जिसको टी से रिप्रेजेंट किया गया है, इसका जो एंटी पार्टिकल होगा बेटा कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, टी के ऊपर बार। बॉटम का एंटी पार्टिकल बी बार लिखा जाएगा, चार्म का एंटी पार्टिकल सी बार लिखा जाएगा, स्ट्रेंज का एंटी पार्टिकल एस बार लिखा जाएगा, अप का एंटी पार्टिकल यू बार लिखा जाएगा, डाउन का एंटी पार्टिकल डी बार लिखा जाएगा, डाउन का एंटी पार्टिकल डी बार लिखा जाएगा। समझ गए। अब टॉप का जो चार्ज है वो है +2/3, तो इसके एंटी पार्टिकल टी बार का जो चार्ज होगा वो 2/3 पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। बी बार बॉटम का एंटी पार्टिकल है बी बार, और इसका चार्ज इसका अपोजिट हो जाएगा, ये -1/3 है तो ये +1/3e हो जाएगा। चार्म का एंटी पार्टिकल है सी बार, इसका चार्ज हो जाएगा -2/3e। कहाँ से लिख रहा हूँ, देखिए चार्म का इतना चार्ज होता है तो चार्म का एंटी पार्टिकल सी बार का चार्ज इसका अपोजिट हो जाएगा -2/3e। स्ट्रेंज का जो चार्ज है वो -1/3e है, और इसका एंटी पार्टिकल एस बार का जो चार्ज होगा वो +1/3e हो जाएगा। ठीक है। अप का चार्ज 2/3e है प्लस में, तो इसका एंटी पार्टिकल यू बार का जो चार्ज होगा, यू बार का जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, -2/3e हो जाएगा। डाउन का जो चार्ज है वो कितना है, -1/3e है, दिखाई दे रहा होगा आपको। डाउन का जो चार्ज है, एक मिनट, अभी दिखाई दे रहा होगा। डाउन का जो चार्ज है -1/3e है, तो इसके एंटी पार्टिकल डी बार का जो चार्ज होगा +1/3e हो जाएगा। तो ये हैं क्वार्क, ये क्या है, क्वार्क। अब यदि मैं प्रोटॉन की बात करूं, देखिए प्रोटॉन किन किन क्वार्क से मिलकर के बना है। प्रोटॉन की मैं बात करूं तो प्रोटॉन किन क्वार्क से मिलकर के बना है ये मुझे पता करना है। प्रोटॉन का जो चार्ज है, चार्ज क्या होता है, +1 होता है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो +1 बनाना है तो कितने अप और कितने डाउन बनाऊं, मिलाऊं। यानी मैं यदि 2 अप और 1 डाउन मिला देता हूं, प्रोटॉन P ये मिलकर के बना होगा 2 अप मिला दीजिए और 1 डाउन। देखिए अप का होता है +2/3, यू का कितना होता है +2/3e। अब 2 अप हैं और डाउन का कितना है, डाउन का होता है -1/3। तो देखिए 2 अप हैं यू, तो यू प्लस यू क्या हो जाएगा, 2/3e + 2/3e कितना आ जाएगा, 4/3e आ जाएगा या नहीं। और डाउन का कितना होता है -1/3e। तो प्रोटॉन किससे मिलकर के बना है, यू 2 अप और 1 डाउन से मिलकर के बना है। तो 2 अप का मतलब 2/3e अप का मतलब, और ये 2/3e और डाउन का मतलब -1/3e। सॉल्व करें इसको तो 3 तो आ गया एलसीएम और स्मॉल e आ गया कॉमन, 2 + 2 - 1 आ गया, तो 4 - 1 3 आया ऊपर और नीचे 3/3e यानी कितना आ गया, 1e आ गया। और यही तो चार्ज होता है प्रोटॉन का। प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, ये +1 मतलब +1e होता है, ये प्रोटॉन का चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का -1e होता है तो प्रोटॉन का +1e होता है। तो प्रोटॉन किससे मिलकर के बना है, 2 अप और 1 डाउन से मिलकर के बना है। वहीं न्यूट्रॉन की मैं बात करूं, न्यूट्रॉन किससे मिलकर के बना है, न्यूट्रॉन की मैं बात करूं, न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है बेटा, 0। क्या होता है, 0। तो न्यूट्रॉन जो मिलकर के बना है, देख सकते हैं आप। मैं 2 डाउन ले लेता हूं, 2 डाउन ले लीजिए और 1 अप ले लीजिए। ठीक है, तो न्यूट्रॉन को मैं लिखता हूं D + U, 2 डाउन का मतलब क्या होता है, -1/3e और 1 अप का मतलब क्या है, 2/3e। जब इसको सॉल्व करोगे 3 तो आ गया एलसीएम, e आ गया कॉमन, तो -1 - 1 - 2 + 2, तो -2 - 2 ये 0 आ गया।
तो कितना चार्ज आ गया न्यूट्रॉन का? 0। यानी न्यूट्रॉन 2 डाउन और 1 यू अप, 2 डाउन और 1 अप, इन 3 क्वार्क से मिलकर के न्यूट्रॉन बना है। और प्रोटॉन बना है 2 अप और 1 डाउन से मिलकर के। इस तरीके से हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ क्वार्क्स निकाल सकते हैं। चलिए, ये बात हो गई न्यूक्लियर फोर्स की। न्यूक्लियर फोर्स इज ए शॉर्ट रेंज फोर्स, ध्यान रखिएगा, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स जो है केवल न्यूक्लियस के अंदर लगता है, जिसकी रेंज 10⁻⁻15 मीटर होती है। तो इट इज़ ए शॉर्ट रेंज फोर्स, ये बात आप ध्यान रखिएगा। एट द सेम टाइम इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल फोर्सेज। ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ये सभी फंडामेंटल फोर्सेज में स्ट्रॉन्ग होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, हम अब लास्ट फंडामेंटल फोर्स की हम इसमें बात कर लेते हैं। और जो फोर्थ यानी लास्ट फंडामेंटल फोर्स है वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये भी एक न्यूक्लियर फोर्स है, लेकिन ये वीक है। 4th नंबर का है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्स पहले लिख लें, इसके बारे में फिर जानेंगे। इट एपियर्स, कहाँ एपियर होता है ये न्यूक्लियर फोर्स? इट एपियर्स ओनली इन सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेसेज। कुछ न्यूक्लियर प्रोसेसेस हैं जिनमें ये अपीयर होता है, सच एज, जैसे कि बीटा डीके ऑफ ए न्यूक्लियस, बीटा डीके ऑफ ए न्यूक्लियस। ठीक है, अब बीटा डीके की मैं यदि बात करूं, बीटा डीके क्या होता है? बीटा डीके क्या होता है? इन बीटा डीके द न्यूक्लियस, पहली लाइन मैंने क्या लिखी? इट एपियर्स ओनली इन सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेसेज। ये कुछ न्यूक्लियर प्रोसेस में हमें देखने को मिलता है। कौन? वीक न्यूक्लियर फोर्स। और वो सर्टेन न्यूक्लियर फोर्सेज, जैसे कि एग्जांपल दिया मैंने बीटा डीके। ठीक है, अब बीटा डीके क्या होता है ये समझना है। इन बीटा डीके द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस तो आप जान ही गए, सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम। द न्यूक्लियस emits either an electron or its एंटीपार्टिकल। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा, यहाँ इसका एंटी पार्टिकल, जिसको हम क्या कहेंगे? पॉजिट्रॉन, उसे एमिट करेगा। अब इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा तो वो नेगेटिव बीटा डीके कहलाएगा, और पॉजिट्रॉन एमिट करेगा तो वो पॉजिटिव बीटा डीके कहलाएगा। यानी जो बीटा डीके है दो टाइप का होता है बेटा। बीटा डीके ये दो टाइप का होता है। एक है नेगेटिव, ये नेगेटिव मैंने यहाँ लिख दिया, नेगेटिव बीटा डीके कहेंगे इसको। ठीक है, लैंग्वेज में लिखें तो नेगेटिव बीटा डीके ऐसे लिख सकते हैं इसको, या ऐसे लिख दो शॉर्ट में। पॉजिटिव बीटा डीके, ये यहाँ सुपर स्क्रिप्ट में पॉजिटिव लगा दो तो ये पॉजिटिव बीटा डीके, पॉजिटिव बीटा डीके। ठीक है, ये पॉजिटिव बीटा डीके। नेगेटिव बीटा डीके में जब देखिए, नेगेटिव बीटा डीके में क्या होता है? न्यूट्रॉन बदलता है प्रोटॉन में, और प्रोटॉन में जब बदलेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन के साथ एक न्यूट्रिनो और निकलता है बेटा। ध्यान रखिएगा, जब भी इलेक्ट्रॉन एमिट होता है तो उसके साथ न्यूट्रिनो निकलता है, ये आपको ध्यान रखना है। न्यूट्रिनो, ये इक्वेशन लर्न करनी है अभी आपको। भाई, न्यूट्रॉन का चार्ज न्यूट्रल 0 होता है, प्रोटॉन का 1 होता है +1, तो इलेक्ट्रॉन का -1 तो 0 बैलेंस हो गया, और न्यूट्रिनो का चार्ज 0 होता है। ठीक है, पॉजिटिव बीटा डीके में प्रोटॉन को जब हम न्यूट्रॉन में बदलते हैं तो पॉजिट्रॉन निकलता है, और पॉजिट्रॉन के साथ हमेशा न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। ये क्या है? एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो।
इसे क्या कहते हैं? एंटी न्यूट्रिनो। म्यू बार, म्यू बार, म्यू बार, ये म्यू न्यूट्रिनो और ये म्यू बार एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, तो ये बात हो गई नेगेटिव बीटा डीके एंड पॉजिटिव बीटा डीके की। ठीक है, तो बीटा डीके में कौन अपीयर होता है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। एक लास्ट पॉइंट और इसके बारे में लिखें, इसमें ज़्यादा डिटेल में हम आगे बात करेंगे 12th क्लास में, नेगेटिव बीटा डीके एंड पॉजिटिव बीटा डीके की, तो उस बात की टेंशन नहीं कीजिएगा। चलिए, अभी जितना ज़रूरत है उतना मैं आपको बता रहा हूँ। द वीक न्यूक्लियर फोर्स, लास्ट पॉइंट इसके बारे में लिखें, द वीक न्यूक्लियर फोर्स इज नॉट एज वीक एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये उतना वीक नहीं है जितना कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, इज नॉट एज वीक एज द ग्रेविटेशनल फोर्स बट much weaker than the strong nuclear force and electromagnetic force, but much weaker than strong nuclear force and electromagnetic force. The range क्या होती है इसकी? The range of weak nuclear force is extremely small, बहुत ही कम होती है, extremely small, extremely small। किस ऑर्डर की? of the order of 10 raised to the power minus 16 मीटर, 10 raised to the power minus 16 मीटर। बहुत कम रेंज का होता है ये। कौन? न्यूक्लियर फोर्स। तो रेंज के बारे में भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो देखिए, अब मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। ये तो न्यूक्लियर फोर्स की बात हो गई। अब जो एग्जाम में या तो चारों फंडामेंटल फोर्सेज पर प्रश्न आएगा, डिस्क्राइब करो, या फिर 1 मार्क क्वेश्चन आता है कैसे कि लॉन्ग रेंज फोर्सेज कौन कौन से हैं और शॉर्ट रेंज फोर्स कौन कौन से हैं। शॉर्ट रेंज फोर्स, ठीक है। लॉन्ग रेंज फोर्स कौन कौन से हैं? लॉन्ग रेंज में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, और कौन है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। शॉर्ट रेंज में, शॉर्ट रेंज फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो ये रेंज ध्यान रखना। स्ट्रेंथ की बात करूं, स्ट्रेंथ के बारे में बात करूं तो इंक्रीजिंग, यदि मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ की बात करूं तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। उससे कम स्ट्रॉन्ग है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। उससे कम स्ट्रॉन्ग कौन होगा? वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। और सबसे कम स्ट्रॉन्ग होगा कौन सा? ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे कम स्ट्रॉन्ग होगा। तो सबसे वीक फोर्स कौन हुआ? ग्रेविटेशनल फोर्स। उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वीक न्यूक्लियर फोर्स, और उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन हुआ? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। एक और स्ट्रेंथ के बारे में भी आप ध्यान रखें तो ज़्यादा बेटर है। क्या स्ट्रेंथ ध्यान रखनी है? रिलेटिव स्ट्रेंथ आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि मैं इस टेबल को ही बता देता हूँ आपको। इस टेबल में, इस बुक्स के अंदर देखिए, फंडामेंटल फोर्सेस प्रेजेंट इन नेचर,
नेम, रिलेटिव स्ट्रेंथ, रेंज, ऑपरेट अमॉन्ग, ये आपको बनानी है। ठीक है, पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स। रेंज देखिए 10⁻⁻39। यदि ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज देखें तो इनफाइनाइट है। स्ट्रेंथ देखिए बहुत कम आ रही है ना, वेरी वीक, 10⁻39, तो सबसे कम स्ट्रेंथ है इसकी, लेकिन रेंज इनफाइनाइट है। और ये कहाँ किसके बीच लगता है? ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स, ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। फिर बात करें वीक न्यूक्लियर फोर्स की, तो वीक न्यूक्लियर फोर्स की जो स्ट्रेंथ है नो डाउट ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा है, 10⁻⁻13, -13, -39 से ज़्यादा हो गई ना। ठीक है, तो -13 यानी ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे कमज़ोर फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 10⁻⁻13। लेकिन ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है ये शॉर्ट रेंज, वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स है। कितना रेंज होता है इसका? लगभग 10⁻⁻16 मीटर। किन के बीच लगता है? एलिमेंट्री पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रिनो है, इनके बीच। अभी मैंने बताया आपको बीटा डीके में जो इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूट्रिनो निकलता है या पॉजिट्रॉन के साथ एंटी न्यूट्रिनो निकलता है, उसमें लगता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का जो स्ट्रेंथ है वो 10⁻⁻2 है, 10⁻⁻2 है। और रेंज क्या है? इनफाइनाइट है। और किसके बीच लगता है? चार्ज पार्टिकल्स के बीच लगता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का रिलेटिव स्ट्रेंथ 1 सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसकी रेंज शॉर्ट होती है। किस ऑर्डर की? 10⁻⁻15 मीटर ऑर्डर की। किन के बीच लगता है? न्यूक्लियॉन्स के बीच लगता है, हैवियर एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच लगता है। और जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है लाइटर एलिमेंट्री पार्टिकल के बीच लगता है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हैवियर एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच लगता है। तो ये आपको टेबल भी पता होनी चाहिए, इसके ऊपर से क्वेश्चन बनता है 1 मार्क क्वेश्चन, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो मैंने इस चैप्टर 1 में आपसे क्या क्या बातें की। आज के इस लेक्चर में हमने 2 फंडामेंटल फोर्सेस की बात की। नंबर 1 जो थर्ड फंडामेंटल फोर्स था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उसकी बात की। देन हमने बात की वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्स की बात की, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात की, और रेंजेज की बात की कि कौन सा फोर्स किस रेंज का होता है। ठीक है, रेंज की बात कर ली। ये ज़रूर आप जो मैंने टेबल आपको बताई थी ना, इसका ज़रूर आप ध्यान रखेंगे और इसको आप लर्न कर लेंगे। ठीक है, इसको क्या कर लेंगे? लर्न कर लेंगे। चलिए, अब कुछ क्वेश्चंस की मैं शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर लेता हूँ। कुछ क्वेश्चंस हैं उनकी बात कर लेते हैं। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई डू वी कॉल फिजिक्स एन एग्जैक्ट साइंस? फिजिक्स को हम एग्जैक्ट साइंस क्यों कहते हैं? बिकॉज इन फिजिक्स जो मेजरमेंट होते हैं वो हाई एक्यूरेसी के साथ लिए जाते हैं, और बहुत कई सारे ऑब्जर्वेशंस लिए जाते हैं, तो उनकी एक्यूरेसी हाई रहती है। उनकी एक्यूरेसी क्या रहती है? हाई रहती है, क्योंकि जो ऑब्जर्वेशंस लिए जाते हैं, मेजरमेंट मतलब ऑब्जर्वेशंस, मेजरमेंट यानी ऑब्जर्वेशंस जो लिए जाते हैं फिजिक्स में, वो हाई एक्यूरेसी, हाई प्रिसाइसनेस के साथ, प्रिसाइस मतलब शुद्धता, ठीक है, हाई प्रिसाइसनेस और एक्यूरेसी के साथ लिए जाते हैं, इसलिए हम फिजिक्स को एग्जैक्ट साइंस कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन, गिव 2 अप्रोचेज टू स्टडी फिजिक्स। फिजिक्स में 2 अप्रोच मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन। यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन, ये 2 अप्रोच होती हैं। नेम 2 मेजर ग्रुप्स ऑफ फिजिक्स। 2 मेजर ग्रुप भी मैंने आपको बता रखे हैं, मैक्रोस्कोपिक ग्रुप एंड माइक्रोस्कोपिक ग्रुप। माइक्रोस्कोपिक जिसमें हम लार्ज साइज के ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं, जैसे यूनिवर्स के साइज का ऑब्जेक्ट, यूनिवर्स की स्टडी इसके अंदर आती है। माइक्रोस्कोपिक में जिसमें हम स्मॉल पार्टिकल्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनकी बात करते हैं, ठीक है, एटम की बात करते हैं, न्यूक्लियस की बात करते हैं, किसमें? माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स में। फॉर एग्जांपल क्वांटम मैकेनिक्स इज एन एग्जांपल ऑफ माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स, एंड दिस क्लासिकल मैकेनिक्स इज एन एग्जांपल ऑफ मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स। तो 2 ग्रुप हैं फिजिक्स के मेजर, माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक। हालांकि इन दोनों के बीच भी एक तीसरा ग्रुप और मैंने आपको बताया था, मीजोस्कोपिक, मीजोस्कोपिक। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, विच ग्रुप ऑफ फिजिक्स हैज रिसेंटली केम इनटू एग्जिस्टेंस? मीजोस्कोपिक आया है। इंटरमीडिएट ग्रुप है किसका? माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक का, ये अभी रिसेंटली आया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट प्लेज मेजर रोल इन फिजिक्स। जो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होते हैं वो मेजर रोल प्ले करते हैं फिजिक्स में, क्योंकि क्वांटिटेटिव मेजरमेंट फिजिक्स में मेजर रोल इसलिए प्ले करते हैं क्योंकि जितने भी लॉज ऑफ नेचर हैं उनको अच्छे तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है किसमें, मैथमेटिकल इक्वेशंस की फॉर्म में। मैथमेटिकल इक्वेशंस की फॉर्म में नेचर के लॉज को अच्छे से एक्सप्रेस किया जा सकता है, इसलिए क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करते हैं फिजिक्स में। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट plays important role, major role, because for the formulation of better concept about laws of nature and natural phenomena, better way to express laws of nature and natural phenomena is the mathematical equation। और mathematical equation की बात किस में होती है, quantitative measurement में। next, name the scientific principle behind technology nuclear reactor। कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है न्यूक्लियर रिएक्टर। मैंने आपको बताया न्यूक्लियर पावर स्टेशंस पर जब हम यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाते हैं तो वो बेरियम, क्रिप्टॉन या जिनोन, स्ट्रोंशियम में डिवाइड होता है और उसके साथ न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं और फिर वो फर्दर यूरेनियम को ब्रेक करते हैं। इस तरीके से ये चेन रिएक्शन स्टार्ट होता है। तो हीट प्रोड्यूस होती है, हीट से पानी गर्म होता है, गर्म बन होकर के स्टीम बनती है और स्टीम से जो है जनरेटर का टरबाइन घूमता है और फिर स्टीम इंजन भी इससे डेवलप किया जा सकता है। साइंटिफिक प्रिंसिपल स्टीम इंजन के पीछे, ठीक है। नेम द साइंटिफिक प्रिंसिपल बिहाइंड टेक्नोलॉजी न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। तो क्या है, चेन रिएक्शन या न्यूक्लियर फ्यूजन उसको हम कह सकते हैं। गिव वन मेजर डिस्कवरी, एक मेजर डिस्कवरी के बारे में बताइए ड्यू टू बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की जो बेसिक मेजर डिस्कवरी है वो है वायरलेस कम्युनिकेशन। आज आप मोबाइल से बात कर पा रहे हो, आज आप मोबाइल से बात कर पा रहे हो बिना किसी वायर के जुड़े हुए। वो मोबाइल वायरलेस कम्युनिकेशन के जरिए आपकी आवाज़ को दूर किसी और तक और किसी और की आवाज़ को आप तक पहुंचा रहा है। वायरलेस कम्युनिकेशन इज़ द मेजर डिस्कवरी रिजल्टेड ड्यू टू बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के कारण ही तो ये वायरलेस कम्युनिकेशन आया, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के रिलेशन से ही क्या आया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट आया। किसका कॉन्सेप्ट आया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट आया इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के रिलेशन से, और उसी से वायरलेस कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। नेक्स्ट, कैन ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन एक्टिंग बॉडीज। यस, ग्रेविटेशनल फोर्स में दो मैसिव ऑब्जेक्ट का कॉन्टैक्ट में आना जरूरी नहीं है। विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है, लगता है, ठीक है। इन मैक्रोस्कोपिक लेवल ऑफ फिजिक्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज डोमिनेंट एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। वाई, जो मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स होता है उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स डोमिनेंट होता है, ज़्यादा प्रभावी होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बिकॉज जो मैटर होता है ना बेटा, मैटर जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। मैटर जो है कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जैसे एटम जो होता है ना बेटा, एटम के बारे में मैंने आपको बताया। एटम, ये एटम होता है और एटम के सेंटर पर न्यूक्लियस होता है। इसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन यानी ये पॉजिटिवली चार्ज होता है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते रहते हैं। तो जितना एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है उतना कि उतना पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी एटम एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंटाइटी है, ठीक है। तो जो मैटर होता है, मैटर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। मेटल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्यों न्यूट्रल है, क्योंकि उसमें जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। इसलिए मैटर के न्यूट्रल होने के कारण वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा डोमिनेंट होता है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मच न्यूक्लियर फोर्स इज कंपेयर्ड टू, हाउ मच स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर फोर्स इज कंपेयर्ड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है किसकी तुलना में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की तुलना में। तो वो ये तो फैक्ट क्वेश्चन है, 100 टाइम्स ग्रेटर होता है। सीधा प्रश्न है। इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स चार्ज डिपेंडेंट। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, नो, इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट। चाहे वीक न्यूक्लियर फोर्स की बात हो रही हो चाहे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। व्हाट इज द रेंज ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स, 10⁻⁻16 मीटर। फैक्चुअल क्वेश्चन है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अचीवमेंट इन यूनिफिकेशन। अचीवमेंट इन यूनिफिकेशन के एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे कि भाई यूनिफाइड कर दिया, जैसे ग्रेविटेशनल लॉ है
उसकी हेल्प से आप एप्पल नीचे गिर रहा है उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। साथ ही साथ आप प्लैनेट्स जो सन के चारों तरफ घूम रहे हैं उसको भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है, तो यूनिफाइड सेलेस्टियल एंड टेरेस्ट्रियल मैकेनिक्स शोड दैट द सेम लॉज ऑफ मोशन एंड लॉज ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई टू बोथ द डोमेन्स। एक ही लॉ के से हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये कहलाता है यूनिफिकेशन। जब मैंने यूनिफिकेशन की आपसे बात की थी तो ये चर्चा की थी। तो ये कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मैंने आपसे डिस्कस किए इस लेक्चर में। तो आज हमारा ये चैप्टर 1 फिनिश होता है। जितना रिक्वायर्ड था बेटा, ऐसे तो बहुत सारा और भी है इसमें, लेकिन जितना रिक्वायर्ड था उतना मैंने आपको बता दिया है इस चैप्टर से। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी कीजिए। जो लेक्चर्स लिए हैं, 4 लेक्चर्स लिए हैं, नोट्स बनाइए, लर्न कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।